Hello friends, I hope that you are doing well by staying at your homes. So today we shall take the last topic of this unit, Central Bank. आपको पता ही होगा कि हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. Reserve Bank of India is an apex monetary institution which is responsible for controlling all the commercial banks. It also produces the currency in the economy and responsible for controlling the money supply. So according to definition, a central bank is an apex monetary institution which fully controls the production, circulation, and supply of money in the market, seeking to regulate the commercial bank and stabilize a nation's economy and national currency. So its function, the functions of central bank, the first function is issue of currency. सेंट्रल बैंक हमारे देश में करेंसी इशू करने का काम करता है. वी हैव मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ करेंसी इशू. मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब कि गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए का अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है और उसके बेस पर वो जितना चाहे करेंसी नोट्स इशू कर सकती है. सो गवर्नमेंट हैज़ टू कीप a minimum reserve of 200 crore rupees. This reserves may include the gold coins, gold bullion, or the foreign currency. On the basis of this minimum reserve of 200 crore rupees, one thing you must remember, in this 200 crore rupees, the minimum gold reserve must not be less than 115 crore. इसमें सोने का जो रिजर्व है वो 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. बाकी जो 85 करोड़ रुपया बचता है उसमें फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन किया जा सकता है. तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में करेंसी नोट इशू करता है. ये 2 रुपये और 2 रुपये से ज़्यादा डिनोमिनेशन के नोट्स इशू करता है. 1 रुपये का नोट और कॉइन्स दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दीज कॉइन्स are issued by the government under the direction of RBI. So central bank is given the sole monopoly of issuing currency in order to secure control over the volume of currency and credit. These note circulation throughout the country as a legal tender money. It has to keep reserves in the form of gold and foreign securities as per the statutory rules against the notes issued by it. It may be noted that RBI issues all currency notes in India except 1 rupee note. Again, it is under the direction of RBI that 1 rupee note and small coins are issued by the government means. Remember, the central government of the country is usually authorized to borrow money from the central bank. So last line, कि central government of the country is authorized to borrow money from the central bank. You know why the central bank issue or why the central bank print new currency notes? Whenever the government expenditure exceeds government's income, and through all his efforts the government is not able to make up its expenditure, still its income remains short of its expenditure. So the deficit, so the value of deficit, the government order the Reserve Bank of India to issue new currency notes equal to the value of deficit. So government Reserve Bank of India print new currency note, and new currency notes are given to the government on the basis of the securities of the government. So uh, the government of India take a type of loan from the Reserve Bank of India on the collateral of its securities. So when the central government expenditure exceeds the government revenue and the government is unable to reduce its expenditure, then it borrows from the Reserve Bank of India. This is done by selling the security bills to RBI, which create new currency notes for the purpose. This is called
मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट और डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो इस प्रोसेस को जब नए नोट छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इस प्रोसेस को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है या मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट कहा जाता है। सो गवर्नमेंट स्पेंड्स दीज न्यू करेंसी नोट्स एंड पुट इट इन सर्कुलेशन टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज द बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंक होता है। मीन्स जिस प्रकार से हम कमर्शियल बैंक्स को एक बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे अपने बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। हम बैंकों को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? हम अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, उससे लोन लेते हैं। यदि पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो वो हम कर सकते हैं। सो यही सब काम सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करता है। तो सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। It carries out all banking business of the government. Government keeps their cash balances in the current account with the central bank. So central government is the only customer of the central bank, that is the Bank of India. हमारे देश की केंद्रीय सरकार अकेला कस्टमर होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट कैन कीप इट्स कैश बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट with the central bank. Similarly, central bank accept the receipts and make payments on the behalf of the government. Also, the central bank carry out exchange, remittances and other banking operation on the behalf of government. जिस प्रकार से हम कमर्शियल बैंकों का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज पर्पस के लिए, कहीं पैसा भेजना है उसके लिए या दूसरे बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, उसी तरह से गवर्नमेंट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार से the central bank also advance loans to the government for a temporary period or as and when required by the government. Okay, so central government can borrow any amount of money from Reserve Bank of India by selling securities to the Reserve Bank of India. So ये हमने पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट का यदि डेफिसिट रह जाता है, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से जितना एक्सीड कर जाता है और गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रयासों के बावजूद गवर्नमेंट अपनी इनकम नहीं जुटा पाती है, तो जो डेफिसिट के बराबर के मूल्य के नोट इशू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार निर्देश देती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ रुपए का अपने पास रख के जितने मर्जी वैल्यू के नोट्स इशू कर सकता है गवर्नमेंट को। तीसरा पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये बैंकों का बैंक होता है, मींस इट इज बॉस ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। जितने भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रकार से बॉस होता है। बॉस मींस के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को जो निर्देश देता है उसकी पालना उन्हें करनी पड़ती है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख सकते हैं। कुछ टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट भाग इन्हें बाय रूल बाय लॉ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है और जब भी जरूरत पड़ती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन भी देता है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर bankers bank or the supervisor. So there are usually hundreds of banks in a country and there should be some agencies to regulate and supervise their proper functioning. The duty is discharged by the central bank. जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम, उन सबको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक के द्वारा ही किया जाता है। So central bank act as a bankers bank in three capacities. In three ways it act as a bankers bank. Number one, it is the custodian of their cash reserves. So by law the commercial banks has to keep some part of their total deposits with the Reserve Bank of India. So it is the custodian of their cash reserves. Banks of the country are required to keep certain percentage of their total deposits with the central bank, and in this way the central bank is the ultimate holder of कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इस रिजर्व को हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा, ये बैंकर्स बैंक के लिए क्या करता है, द सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी इफ द कमर्शियल बैंक्स आर इन
some financial crunch and they required funds, and despite of their efforts they are not able to get sufficient funds. So what they do, at last they may go to the सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक उन्हें लोन दे ही देता है. उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करता है. रिसेंटली आपने देखा होगा यस बैंक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्प की और उसे प्रॉब्लम से निकाला. द सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. whenever banks are short of funds, they can take loans from the central bank and get their trade bills discounted. The central bank is a source of great strength to the banking system. And third is it act as a bank of central clearance. यानी अगर एक बैंक के चेक दूसरे बैंक के पास होते हैं तो सोचो, अगर ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं और बहुत सारे चेक्स एक बैंक के दूसरे बैंक के पास होते हैं, और अगर इंडिविजुअल बैंक से उसको क्लियर कराने लग गया तो कितना ज़्यादा हॉच पॉच सिचुएशन होगी. तो ऐसा नहीं होता. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट एक्ट एज ए हाउस ऑफ क्लियरेंस विदाउट एनी कैश ट्रांजेक्शन्स. सिर्फ रजिस्टर्ड में ही लेन देन के द्वारा उन चेक्स को क्लियर कर दिया जाता है. So it acts as a bank of central clearance, settlement and the transfers. Its moral persuasion is usually very effective so far as commercial banks are concerned. चौथा फंक्शन ये सेपरेटली भी आ सकता है कि what are the credit control measures of the central bank. So it is controller of credit and money supply in the economy. So central bank money supply को कंट्रोल करता है, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके. क्योंकि यदि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे. इफ़ द गुड्स और सर्विसेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, then there is a possibility of rise in prices. So thereby the Reserve Bank of India try to stabilize the economy by controlling the credit creation and the money supply. So central bank control the credit and money supply through its monetary policy, which consists of two parts. Number one is currency and credit. The central bank has monopoly of issuing notes except 1 rupee note, 1 rupee coins and the small coins issued by the government, and thereby can control the volume of currency. The main objective of credit control function of central bank is the price stability along with the full employment level. It controls the credit and money supply by adopting quantitative and qualitative measures discussed in section 8.25. Following three quantitative measures of credit control by Reserve Bank of India are recalled for ready reference. So what are its instruments for controlling money supply? First thing is the bank rate. Bank rate, remember it is a rate, it is interest rate. It is the interest rate at which the central bank give credit to the commercial banks. ये एक ऐसा ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को ऋण देता है. सो इस प्रकार से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. एक बार फिर से, बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. रिमेंबर, ये लोन लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. नेचुरली जब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो वो लोगों को लोन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे. तो इसके कारण जो क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी. अगर इफ़ देयर इज डिक्रीज इन द बैंक रेट, अगर बैंक रेट कम हो जाता है, सो इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विल आल्सो डिक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ credit will decrease, and thereby the demand for credit will increase and money supply hence will be increased. So bank rate and the money supply or the credit creation are having the negative relationship. Means with the increase in bank rate, the demand for credit decreases and hence decrease in the money supply. Similarly, with the increase in bank rate, the money supply and credit creation will decrease in the economy. Next is the repo rate.
रेपो रेट भी उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से बैंक रेट काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो बैंक रेट है वो वो एक वो ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक्स को जो लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है उस पर लगता है। रिमेंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट है। बैंक रेट के लिए कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, जबकि रेपो रेट के अंतर्गत यदि बैंकों को लोन लेना है तो इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ती है। रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज मीन्स कि अगर बैंकों को लोन लेना है तो कमर्शियल बैंक हैज टू कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उनको एक प्रकार से लिख के देना पड़ता है कि हम इतने समय बाद हम इसको इस रेट पर दोबारा से परचेज कर लेंगे। तो ये एक प्रकार का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को प्रदान करता है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज। So repo rate, the rate at which the banks borrow from RBI, it is the repurchase rate for the securities that commercial banks keep with the RBI while borrowing for short term. Commercial bank borrow money from the Reserve Bank of India by selling securities or bond with an agreement to repurchase the securities on certain date at a predetermined price. The rate of interest charged by the central bank on the cash borrowed by the commercial bank is called the रेपो रेट। और रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम या ज़्यादा करके क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ये इसका इफेक्ट उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बैंक रेट का है। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट क्रिएशन को कम करना चाहता है, सो रेपो रेट के साथ वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। यदि रेपो रेट को बढ़ाएगा तो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और मनी सप्लाई भी कम होगी। सिमिलरली, यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंक्रीज द रेपो रेट एंड विद द इंक्रीज इन रेपो रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी विल आल्सो इंक्रीज एंड विद द इंक्रीज इन rate of interest the demand for credit will fall and with the fall in the demand of credit the credit creation will also fall and hence the money supply will also decrease. At present the repo rate is 4.4%. Next is the reverse repo rate. It is opposite to repo rate. In repo rate the commercial banks take loan from the Reserve Bank of India. Reverse repo rate is opposite to repo rate. Reverse repo rate means it is that interest rate at which the Reserve Bank of India borrow from commercial banks या commercial bank deposit their excess cash with the Reserve Bank of India. So it is the interest rate at which the commercial banks park their surplus funds with the Reserve Bank of India. जिस प्रकार से हमारे घरों में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम उसे बैंकों में जमा कर देते हैं और बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, इसी प्रकार से कमर्शियल बैंक्स के पास यदि अनयूटिलाइज्ड फंड पड़े हैं तो वो उन अनयूटिलाइज्ड फंड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा सकते हैं और जो ब्याज उन्हें सेंट्रल बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलता है उस ब्याज दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से कम होती है। तो अगर क्रेडिट क्रिएशन कम करनी है इकोनॉमी में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ये एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है कि कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखें। तो अगर ऐसा होता है तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा ऋण देने के लिए और ऋण कम दिया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो रेपो रेट एट प्रेजेंट इट इज 3.75%। नाउ इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सरकार की सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोगों को या बैंकों को खरीदना और बेचना। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कमर्शियल बैंक्स को बाय लॉ इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है जिसे SLR कहते हैं। इसके अलावा आम पब्लिक भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदती है। तो जब भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर दोबारा से सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स को बेचता है तो क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी पेपर क्लेम्स, दे आर जस्ट द पेपर्स। तो पेपर्स इकोनॉमी में जाएंगे और इकोनॉमी से पैसा निकलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। अब इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं रहा क्योंकि कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया। सिमिलरली अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो बाय परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द पेपर क्लेम from economy come to Reserve Bank of India, and the money or the cash is injected in the economy by the Reserve Bank of India. So cash flow Reserve Bank of India से इकोनॉमी की तरफ होगा और जो पेपर सिक्योरिटीज हैं, पेपर क्लेम्स हैं, वो इकोनॉमी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ होंगे अगर गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है। सो दिस वे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इज द CRR, कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। सो एट प्रेजेंट द कैश रिजर्व रेशो इज 3%। सो इफ अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है। कैश रिजर्व रेशो बढ़ने के कारण क्या होता है, तो अब कमर्शियल बैंकों को पहले से ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, जिसके कारण उनके पास लोन देने के लिए पैसा, क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसा कम बचेगा और क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम होगा। तो अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो व्हाट इट विल डू विद द कैश रिजर्व रेशो? यस, यू आर राइट, CRR कम कर दी जाएगी। CRR कम करने से क्या होगा, अब बैंकों को पहले से कम पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा और बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा अब ज़्यादा बचेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा लोगों को ऋण दे पाएंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा इकोनॉमी में। सेम इफेक्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का होता है। So what is statutory liquidity ratio? SLR. Statutory liquidity ratio means कि every bank has to keep some percentage of their total deposits with themselves in liquid form. In our country, ये जो liquid form है हमारे यहाँ पर बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रखनी पड़ती हैं। अगर SLR कम कर दी जाती है, इफ SLR इज reduced or decreased, what will happen? Now the banks has to invest lesser amount of money than the previous in government securities. So they will have more money for credit creation and there will be more credit creation in the economy. So at present the SLR is 18.5%. Remember, the commercial bank invest more money in government securities than the legally required, so that the surplus securities can be discounted from Reserve Bank of India if they require the credit. So we have seen these functions. These are the credit control functions. These are the various instrument through which the Reserve Bank of India controls the credit. The fifth is exchange control. Exchange means कि $1 कितने रुपए का आता है या कितने रुपए $1 के बदले खरीदने दिए जाएंगे या $1 खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, या अगर इंडियन के पास डॉलर्स हैं तो वो $1 बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे, दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट. So this exchange rate is controlled by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India keep foreign exchange reserve with them. विदेशी मुद्रा का भंडार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति पर डिपेंड करता है. एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है
तो एक्सचेंज रेट बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल उसे करना चाहता है, देन इट सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व, ताकि उसकी सप्लाई उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ाई जा सके। सो देयर बाय इट मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिक्स इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये इस पॉइंट को हम ऊपर बता चुके हैं कि वेन एवर द कमर्शियल बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स, सपोज देयर आर लिक्विडिटी क्राइसिस इन द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर फंड्स, और उन्हें बहुत जगह हाथ पैर मारने के बाद भी फंड्स जितनी ज़रूरत है उतने मिल नहीं रहे, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाएं और वहाँ से उन्हें लोन मिल सकता है। ओके, सो व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव एग्जॉस्टेड ऑल रिसोर्सेज to supplement their funds at the time of liquidity crisis, they approach the central bank as a last resort, as a lender of last resort. Central bank guarantees solvency and provide financial accommodation to commercial banks. So how the central bank provide credit to the commercial bank in this situation? पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि एसएलआर के तहत कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में निवेश करना पड़ता है। लास्ट में मैंने बताया था कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जितना उन्हें कानूनन तौर पर रिजर्व में रखना पड़ता है उससे ज़्यादा मूल्य की सिक्योरिटीज अपने पास खरीद के रख सकते हैं। तो वो जितने ज़्यादा मूल्य की सिक्योरिटीज उन्होंने अपने पास रखी हैं, सरप्लस जो सिक्योरिटीज उनके पास हैं, वो इस समय काम आती हैं। सो वो उन सिक्योरिटीज को डिस्काउंट करा लेते हैं इस टाइम पर। सो बाय डिस्काउंटिंग देयर एलिजिबल सिक्योरिटीज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा तरीका क्या है? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सो दिस सेव द बैंक फ्रॉम पॉसिबल फेलियर एंड बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम अ पॉसिबल ब्रेकडाउन। अभी रिसेंटली जो येस बैंक वाला केस हुआ है उसमें ऐसा ही हुआ है। येस बैंक के पास जो सरप्लस सिक्योरिटीज थी वो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी और उसके बेसिस पर उन्हें लोन मिल गया। जब पैसा आ गया यस बैंक के पास तो लोगों में भी फेथ आया कि यस बैंक अब फेल नहीं होने जा रहा है। सो इस तरह से यस बैंक जो है वो बच गया फेल होने से। सो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है बाय एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसेस। एज आई हैव टोल्ड यू कि विदेशी मुद्रा के भंडार सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करे रखता है। इसके अलावा देश में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक मेंटेन करके रखता है। सो इट कीप क्लोज वॉच ऑन द एक्सचेंज रेट मार्केट। जब भी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ती है या ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है तो वो फॉरेन करेंसी को बेचकर या खरीद कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लास्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये किस प्रकार से करता है। तो बैंक रिसीव चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक फ्रॉम देयर कस्टमर्स विच दे हैव टू रियलाइज फ्रॉम द ड्रॉवी बैंक। मान लो किसी एक व्यक्ति का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और वो एक दुकानदार है, उसके पास चेक पंजाब नेशनल बैंक का आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का आ गया। तो वो क्या करेगा, ये सारे चेक ले जाकर अपने बैंक यानी रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर जमा कर देगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन चेक को क्या करेगा? क्या एक चेक को पंजाब नेशनल बैंक में भेजेगा, एक चेक को ओबीसी में भेजेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सो सिमिलरली, क्योंकि दूसरे बैंकों के पास भी इसी प्रकार से अलग अलग बैंकों के चेक होते हैं, सिमिलरली चेक्स ऑन पर्टिकुलर बैंक्स आर ड्रॉन एंड पास्ड into the hands of other bank which have to realize them from the drawing bank। तो इसी प्रकार से दूसरे बैंकों के पास भी इसी प्रकार से अलग अलग बैंकों के चेक होते हैं जो कि उन चेक को इशू करने वाले बैंकों से रियलाइज यानी उन्हें एनकैश कराना पड़ता है। सो इंडिपेंडेंटली या सेपरेट रियलाइजेशन हर चेक का कराना बहुत ही मुश्किल होगा या बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक उन्हें प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पर सभी बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो उन बैंक्स को एक जगह बैठकर ही सारे चेक के जो क्लेम्स हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो इससे इससे विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड में ही एंट्री करके ये सारे के सारे जो चेक्स के जो क्लेम्स हैं वो फाइनलाइज हो जाते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड
द चैप्टर सेंट्रल बैंकिंग. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो विद दिस, और दिस यूनिट इज ओवर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.